Welcome children. Quadrilaterals for class 8.1. Let me discuss few more questions from this exercise. Now question number 10 is ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on its diagonal BD. तो आप देख रहे हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है, A से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है AP, C से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है CQ और दोनों परपेंडिकुलर BD के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो हमें शो करना है ट्राइंगल APB मीन्स दिस ट्राइंगल and triangle CQD means this triangle congruent, and second part we have to prove that AP this line equal to CQ. Now see children, in such type of questions where we have to show or prove, some common steps of writing are there. First of all, we write given, means whatever is given in the question that is written here. So we have written ABCD is a parallelogram, AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD. This is the given condition. Then whatever we have to prove, that step is written. So we have written to prove. So two things which we have to prove here, that we have written here. Then we start the proof. So this is the technical way of writing given, to prove and prove. If somehow somewhere construction is also there, so you will write one more line before proof, that is construction. Now let me move on to the proof. First of all, let me take the first part, triangle APB and triangle CQD. We have to prove them congruent. Congruent के हमारे पास चार क्राइटेरिया हैं, SSS, SAS, ASC एंड RHS. आइए यहाँ पे देखते क्या होगा. सबसे पहले देखिए, बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड आपकी पैरेलल होंगी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ Z. आप ऐसे गए C से D, then transversal DB, then this side AB. So you can see this formation of alternate angles, and these are the alternate angles. So we can see this 2 and this 1 are making a pair of alternate angles. So these will be equal as these two lines are parallel. So angle 1 equals to angle 2. Then we know in a parallelogram opposite sides are equal. So we can see here CD and AB will be equal. So AB equal to CD because opposite sides of a parallelogram are equal. Third thing we can see, it was given AP and CQ are perpendicular. So this angle is of 90 degree. This is also 90 degree. So what we are watching? Angle, angle, side. Angle, angle, side. So by AAS congruency rule, these two triangles are congruent. Now, when the two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So it gives that this line AP and this line CQ, they will be equal to each other by CPCT. You can see the first two alphabet is AP, first two alphabet is CQ. So they are the corresponding sides. So according to the CPCT rule, AP will be equal to CQ. So this way this question will be proved. Moving on to the next question. Now our question is, in triangle ABC and DEF, ABC, DEF, these are two triangles. AB equal to D, AB equals to D and AB पैरेलल टू D. तो AB जो है वो DE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. देन इट इज गिवन BC इक्वल्स टू EF. ये BC जो हमारी साइड है वो EF के इक्वल है and BC is parallel to EF. So BC and EF are equal and parallel both. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. अब आपने एक लाइन के माध्यम से A को D से जोड़ा, C को F से जोड़ा और B को किससे जोड़ा है? E से जोड़ा है. तो we are obtaining this figure. Now what we have to show? We have to show first of all quadrilateral ABED is a parallelogram, BEFC is a parallelogram, AD parallel to CF, AD equal to CF, quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC equal to DF, triangle ABC congruent to triangle DF. So these all are interconnected parts. So let me first discuss quadrilateral ABED. Now let's see ABED, this one. Now we know that if in a quadrilateral one pair of opposite sides are parallel and equal, then it becomes a parallelogram. तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABED देखें
तो इसमें जो साइड है ए बी और डी ई ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो एज पर द रूल इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी, so according to the rule ABED is a parallelogram। आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि BEFC एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले BEFC को देखते हैं। BEFC ये वाला हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें कंडीशन दी गई कि जो BC है वो EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ आर अपोजिट साइड। तो हमें पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन शो दैट BCEF इज अ पैरेललोग्राम। नाउ हमारा थर्ड पार्ट, हमें प्रूव करना है कि ADCF के पैरेलल है, AD इक्वल टू CF है। ADCF के पैरेलल भी है और ADCF के इक्वल भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ABED, ये हमने प्रूव किया कि ABED एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो BE के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो AD इज पैरेलल टू BE, AD इक्वल्स टू B बिकॉज ABED इज अ पैरेललोग्राम। फिर हमने प्रूव किया था कि BCFE ये नीचे वाला BEFC ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें ये वाली साइड CF और BE, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल थी, तो BE इज इक्वल टू CF, BE इज पैरेलल टू CF। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करिए। देखिए इस पे दिया गया है कि AD BE के पैरेलल है, CF BE के पैरेलल है। वी नो वन रूल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू अ कॉमन लाइन देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो AD है वो BE के पैरेलल है, CF आपका BE के पैरेलल, BE यहाँ पे कॉमन हो गया, तो इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि AD पैरेलल टू CF हो गया। सिमिलरली AD BE के इक्वल है, CF BE के इक्वल, तो ये कॉमन आ गया। वी कैन राइट दैट AD एंड CF आर इक्वल। ये यूक्लिड का एग्जाम भी है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो AD इक्वल टू CF, तो दिस इज अवर थर्ड रिजल्ट। नाउ हमारा फोर्थ रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है कि ACFT को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अभी हमने थर्ड रिजल्ट में प्रूव किया कि जो AD है ये वाली साइड ये CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ACFT ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिखाना है कि जो हमारा AC है वो TF के इक्वल है। तो हमने अभी शो किया कि ACFT ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होंगी, तो इट मीन्स जो AC है ये साइड और ये साइड TF है ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। दिस इज अवर फिफ्थ रिजल्ट। नाउ लास्ट रिजल्ट इज वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अब बड़ा ही सिंपल है। देखिए जब हमने शो किया था कि ABED एक पैरेललोग्राम है, तो हमने दिखाया था कि जो AB है वो DE के इक्वल है। फिर हमने प्रूव किया था कि BEFC ये वाला एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। फिर हमने शो किया था कि ACFD ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड दिस वन DF और AC ये आपस में इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। तो हम देख रहे हैं AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है। ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। So these two are congruent by SSS criteria. So this way we can prove this question. Now next question, a very important question. ये क्वेश्चन है कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. तो AB DC के पैरेलल है, AD इक्वल टू BC हमें दिया गया है AD इक्वल टू BC। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। चिल्ड्रन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि किसी भी ट्रेपेजियम में
अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड जैसे कि AD और BC आपस में इक्वल हैं, अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसमें हमें ये सारे रिजल्ट शो करने हैं। तो आइए इसमें कंस्ट्रक्शन की जाएगी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने C से एक लाइन बनाई CE जो AD के पैरेलल होनी चाहिए और AB को हमने प्रोड्यूस कर दिया AE तक। तो C से जो लाइन आ रही है और AB को प्रोड्यूस किया, दोनों E पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाया कि जो AD है वो CE के क्या है, पैरेलल है। आइए अपने प्रूफ पे चलते हैं। अब पहला पार्ट है हमें प्रूफ करना है कि BC इक्वल्स टू EC। आइए करते हैं। अब देखिए AECD इस कोऑर्डिनेटर को देखिए, ये कोऑर्डिनेटर हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन था कि AB पैरेलल टू DC है, तो इसका मतलब AE DC के पैरेलल होगा। फिर हमने कंस्ट्रक्शन से बताया कि AD और EC आपस में पैरेलल हैं, तो इस कोऑर्डिनेटर ADCE के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है AECED। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जो साइड AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी EC के इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AD है वो BC के इक्वल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि AD EC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। अगर दोनों रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स वी विल गेट दिस। अगर हम इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। अब ट्रायंगल देखिए BCE में BC और EC आपस में इक्वल हैं, तो अगर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट बिकम्स आइसोसेलेस। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ आप देखिए, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ADCE में एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। फिर आप देखिए इस फिगर में एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब दोनों रिजल्ट्स में राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3। अब इसमें देखिए एंगल 1 प्लस 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3 है। अभी हमने दिखाया है रिजल्ट कि एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, तो 4 और 3 को यहाँ से हमने काटा तो हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जो कि हमारा पहला पार्ट है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें प्रूव करना है। अब देखिए दूसरे पार्ट पे जाते हैं। हमने अभी प्रूव किया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। अब आप देखिए जो एंगल 1 है, एंगल 3 है सॉरी, दिस और दिस एंगल C, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट पेयर। देखो AE और DC आपस में पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है आपकी BC, तो ये आपका Z की फॉर्मेशन ऐसे करके, ये Z की फॉर्मेशन, तो ये और ये आपके कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 आपका एंगल C के इक्वल हो गया। नाउ दिस एंगल D एंगल 4 के इक्वल होगा, बिकॉज ADCE हमने पैरेललोग्राम दिखाया था। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल D आपका एंगल 4 के इक्वल हो गया। बट अभी हम एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो इन दोनों रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एंगल C और एंगल D भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट था, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। अब आइए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PAD। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं, ABC और PAD। तो इनमें सबसे पहले देखिए AB क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके अलावा अभी हमने दिखाया एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में इक्वल था। इसके अलावा AD और BC ये दोनों साइड इक्वल गिवन है। तो देखिए साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो हमारा की थर्ड रिजल्ट है। फोर्थ रिजल्ट है कि हमें दिखाना है कि डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल है। तो अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं। तो देखिए इसका पहला और थर्ड, इसका पहला और थर्ड, तो AC इक्वल्स टू BD।
यानी AC और PD दोनों डायगोनल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर के दो एडजेसेंट एंगल, नीचे के दो एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू कीप इन माइंड। थैंक यू।